Yes, good morning class. Again, we'll start our class with this pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Yes, we were reading about two houses of parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha. Lok Sabha we have already done, and today we'll read about both houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. So, basic qualifications for membership of Lok Sabha we have already discussed, but basic qualifications for Rajya Sabha, only one difference is there. In the Lok Sabha, candidate should be a minimum of 25 years of age, but in the Rajya Sabha, he or she should be a minimum of age 30 years of age. Other rest of the qualifications are the same as required for a member of the Lok Sabha. After that, we have tenure, 5-year tenure for Lok Sabha and 6-year tenure for Rajya Sabha, and every 2 year one of third members of the Rajya Sabha members retired. परमानेंट हाउस है, इट कैन बी डिसॉल्व, तो ये परमानेंट हाउस है इसलिए इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, और हर 2 साल के बाद इसके जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनमें से 1/3 मेंबर वो है रिटायर हो जाते हैं. तो मेथड ऑफ इलेक्शन अबाउट लोकसभा वी नो, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एडल्ट सफरेज फ्रॉम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, universal adult franchises, but in the Rajya Sabha indirectly elected by the elected members of the state legislative assemblies to represent the respected states and union territories. तो इसमें क्या है, indirectly इलेक्ट होते हैं जो मेंबर्स हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिप्रेजेंट किए हुए हैं, उनमें से ही इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, और वो अपनी स्टेट और यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं. Nominations of the some members of the president, 2 members of the Anglo-Indian community nominated by the president for Lok Sabha House, and it has if it has not been adequate representative. अगर स्टेट्स में से और यूनियन टेरिटरीज में से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आगे नहीं आता, नहीं वोट लेकर आगे आता, तो क्या है, तो 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है. एंड व्हाट अबाउट द नॉमिनेशन इन राज्यसभा फ्रॉम प्रेसिडेंट, 12 मेंबर्स हु हैव शोन एक्सेलेंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज. तो राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट. वो मेंबर कौन से होते हैं, जिन्हों की एक्सीलेंस वर्क होता है लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज में. आफ्टर दैट maximum number of members, 5/3 in the Lok Sabha, total strength of the Lok Sabha is 552 members, 530 from states, 20 from union territories, and 2 nominated by the president. After that, members for the Rajya Sabha, 238 elected members इलेक्ट होके आते हैं, एंड 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, 12 मेंबर्स जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज. टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250. तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा इज स्पीकर, एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा इज चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट. सो आफ्टर दैट वी हैव powers of the presiding officer of Lok Sabha, mean role, powers and functions of the speaker. First one, role, powers and functions of the speaker is regulating the business of the house. तो स्पीकर क्या करता है कि वो हाउस की, लोकसभा के हाउस की मीटिंग को लीड करता है, मीटिंग्स लेता है,
और वो अलॉट करता है टाइम मेंबर्स को कि किसने कितने टाइम तक बोलना है, और रेगुलेट करने का काम है स्पीकर का। इसके अलावा क्या है, और इन रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस, उसमें क्या है कि स्पीकर ही है जो सर्टिफाइज करता है कि कोई बिल जो हाउस में चल रहा है वो मनी बिल है या कोई ऑर्डिनरी बिल है, इसमें डिसीजन भी स्पीकर ही देता है। तो उसके बाद है सम डिसिप्लिनरी फंक्शंस। इसमें क्या है कि स्पीकर्स क्या है, द स्पीकर मेंटेन ऑर्डर द हाउस, तो अपना ऑर्डर मेंटेन कर सकता है हाउस में। और अंडर द एंटी डिफेक्शन एक्ट ऑफ 1985 द स्पीकर इज वेस्टेड विद द पावर रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोक सभा हु इज डिबेयर्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिस टिल इलेक्टेड अगेन। तो क्या है एंटी डिफेक्शन एक्ट में, क्या है एंटी डिफेक्शन एक्ट में कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमने अभी डिस्कस भी करना है, अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ अ मेंबर ऑफ हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी शैल बी डिस्क्वालिफाइड। तो क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या है कि जो भी लोकसभा का मेंबर है और वो जिस पार्टी में है, अगर वो कोई दूसरी पार्टी में चला जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, मीन्स वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को जब ज्वाइन कर लेता है। तो ये पावर भी लोकसभा के स्पीकर के पास ही होती है कि कौन सा मेंबर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर चले गया कि वो अब इस पार्टी का पार्ट रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, अगर तो वो खुद ही इस पार्टी को छोड़कर दूसरी में चला जाता है दैट्स गुड, अदरवाइज उसे कोई एक पार्टी में ही रहना पड़ता है। थर्ड वन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो स्पीकर के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कौन से हैं? द स्पीकर रिसीव्स ऑल पिटीशंस एंड डॉक्यूमेंट्स एड्रेस टू द हाउस। हाउस को एड्रेस करने के लिए हाउस को स्पीच जो होनी होती है उसके लिए वो सारी पिटीशंस जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होने होते हैं हाउस में वो स्पीकर के पास ही आते हैं। आफ्टर दैट स्पीकर हैव सम सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट कमेटी। तो द कमेटी ऑफ द हाउस फंक्शन अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर। तो सारी की सारी पार्लियामेंट कमेटी है वो स्पीकर की सुपरविजन में ही रहती है। आफ्टर दैट अदर पावर्स एंड फंक्शंस। इसके अलावा स्पीकर के पास कौन सी पावर्स है? द स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सीटिंग बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज की जो जॉइंट मीटिंग होती है उसको कौन लेता है? स्पीकर ही लेता है। एंड some other powers and functions of speaker are also there. After that we have advantages of the Lok Sabha. Lok Sabha के क्या advantages है? House of the people, it's the Lok Sabha rightly named as a House of the People as gives representation to the people who elect इट्स मेंबर्स डायरेक्टली। तो क्या है कि लोकसभा में लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है जो लोकसभा है इट्स अ हाउस ऑफ द पीपल। इसको हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है, लोगों का ही हाउस बोला जाता है। मेकर ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो लोकसभा है लोकसभा गवर्नमेंट को फॉर्म करता है, इसलिए इसको मेकर ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। आफ्टर दैट मे थ्रो आउट द गवर्नमेंट एनी टाइम। तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लोकसभा के जो भी मेंबर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट हैज़ टू रिज़ाइन इफ़ इट लॉसेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। अगर ये लोकसभा में अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म कर लेते हैं, विश्वास नहीं रहता इनके ऊपर, तो इन सारे मेंबर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कलेक्टिवली रिज़ाइन करना पड़ता है। फाइनेंशियल पावर्स। स्पीकर हैव सम लोकसभा का एक ये भी एडवांटेज है कि इसके पास बहुत सी फाइनेंशियल पावर्स है। द लोकसभा हैज़ सुप्रीम अथॉरिटी ओवर फाइनेंशियल अफेयर्स। ये सुप्रीम अथॉरिटी है फाइनेंशियल अफेयर्स के लिए। ऑल द मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन द लोकसभा अलोन। कोई भी मनी बिल है वो सबसे पहले क्या होगा, वो लोकसभा में ही
पेश किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ द लोकसभा इज एजुकेशनल रोल ऑफ द हाउस। एजुकेशन में भी रोल है लोकसभा का। द लोकसभा प्लेज अ वाइटर रोल इन स्प्रेडिंग पोलिटिकल अवेयरनेस अमंग द पीपल थ्रू डिबेट्स एंड डिस्कशंस। जो हाउस में डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती हैं उसके साथ क्या होता है, ये लोकसभा है वो स्प्रेड करता है पोलिटिकल अवेयरनेस लोगों में। So it's another one advantage of Lok Sabha. So our content is only up to this much. In the next class, we'll continue with the next content. With this, goodbye to all of you.